تو انشاءاللہ ہم تعلیم تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن تربیت کریں گے، اور تربیت بھی رابعین اسکول سسٹم کے معیار کے مطابق جو کمٹمنٹس ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں ان کے مطابق ہم انشاءاللہ بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم کا ایک مرکز اور ایک محور جو ہے فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا اسٹاف انتہائی کوالیفائڈ ہے، کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ ایم ایس سی سے کم ان کی تعلیم، ایم ایس سے کم تعلیم نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب ایکسپیرینس لوگ ہیں، 6 8 10 سال 7 سال ایکسپیرینس ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، آپ دوستوں کے آپ احباب کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اس موقع کو مکمل طور پر اویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اصل تقریب تو شروع کرنی تھی لیکن قاری صاحب غیر حاضر تھے، تقریب شروع تو تلاوت کلام پاک سے کرنی تھی، اس لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد سدیس کو، آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ سدیس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا قاری کامران صاحب کو، تشریف لائیں اور ذکر مصطفیٰ سے دلوں کو روشن کریں۔ آپ کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، اور پھولوں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، عطروں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور والشمس تو آقا تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آقا نے نالین اتارے ہوں گے، اور کتنے رنگی تیری محفل
محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے. نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے, نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں. میری عزت ہے اس لیے حافظ میں مدینے والے کی بات کرتا ہوں, میں مدینے ہوں. مجھے بٹھا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد محترم منظور خان سنجانی کو. وہ آئیں اور اپنے مہارت اپنے تھوڑے سے تجربات, اور میں یہ چاہوں گا کہ مجھے کچھ سجیشنز, کچھ ہدایات, کچھ نصیحتیں کریں, اور تاکہ میں اپنے ادارے کو, ہم سب اپنے ادارے کو بہترین بنانے کے لیے ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز مہمان گرامی, استاد محترم صاحب علوی صاحب, السلام علیکم. یونس صاحب کے ساتھ میرا جو ایک تعلق ہے وہ 2000 سن تقریباً 2011 کا ہے, کہ جب میں نیشنل انٹرنشپ پروگرام پہ تحت میں کو میں نے جوائن کیا, اس وقت تو ایک ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا احترام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مسلسل وہ گوشہ نشینی میں رہے یا ہم رہے, یہ الگ بات ہے. اس کے بعد جب میرے خیال میں اکیڈمی جوائن کی, اکیڈمی کلچر کی طرف میں آیا, تو اس وقت اس سے اکثر گفت و شنید ہوا کرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونس صاحب ایک انتہائی پروفیشنل انسان ہے. اب ماشاءاللہ بزرگوں کی دعاؤں سے اور ان کی اپنی انتہائی کمٹمنٹ کے تحت ان کی جب لیکچرشپ ہوئی ہے تو مجھے بہت زیادہ اس لیے خوشی ہوئی کہ یہ نہ صرف ہمارے ایک طالب علم رہے ہیں, اس کے ساتھ ہمارے دوست ہیں, ایک انتہائی گہرے اور سنجیدہ مخلص دوست رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کی پروفیشنلزم کی بات ہے تو ان سے بڑا اپنے شعبوں میں نوجوانوں میں سے اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. جہاں کروڑ کی سرزمین میں آگے تو جہاں کروڑ میں بہت ہی تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا ایک سلسلہ جاری ہے, وہاں راوین سسٹم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا اضافہ ہوگا. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب فرمائے, اور اسی طرح وہ اپنا جو تعلیمی کیریئر ہے وہ جاری اور ساری رکھیں. ہماری دعائیں ہر قسمی تعاون یونس بھائی آپ کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے وہ خود ایک پروفیشنل ہیں, اپنے ادارے کو بھی اسی ڈگر پہ لے کے چلیں گے. جزاک اللہ. شکریہ. ساجد بھائی آپ تشریف لائیں, آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے اور آپ ایک ماہر تعلیم ہے میں سمجھتا ہوں. آپ آئیں, راویہ سکول سسٹم کے حوالے سے دوستوں کو آگاہ کریں, اپنے تجربات بھی شیئر کریں. السلام علیکم. میں جو سکول اور باقی ان چیزوں کے بارے میں, تو سکول میں یونس صاحب اور میں ہم الائٹ سکول میں پڑھاتے رہے ہیں تقریباً 2020 سے لے کر 2021 میں 6 ماہ میں نے پڑھایا ہے. اس کے بعد 2022 میں اگست سے لے کر 23 کے اپریل تک میں نے ان کے ساتھ پڑھایا ہے.
تو اس طرح ہر بندے کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. میرے پاس میری سلیکشن ہو گئی تھی دسمبر میں, تو میرے پاس ٹائم تھا, میں کہا ٹائم یوٹیلائز کر لیتے ہیں اپنا. تو میں SDO کروڑ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. اور باقی یونس صاحب کے بارے میں بتا سکتا ہوں. اسکول کا تو ٹائملی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو یونس صاحب جو بہت ہی اچھے انسان ہے, کمیٹڈ انسان ہے, اور جو ٹائم پہ بھی بہت پابند ہے, اور ان کے جیسے ایمز تھے یہ ان پہ کام کر رہے ہیں اپنے ایمز پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ سکولز میں جیسے آج کل سکولز ہیں, میں نے بھی 2-3 سکول پڑھائے تھے اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ میں. تو سکولز میں جیسے ہوتا ہے آج کل جو پرائیویٹ سکول جو ہے نا وہ بزنس بن چکے ہیں. تو میں ان سے اور باقی بھی تمام سکولز کے ہیڈز جو ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سکول کو تو دیکھیں جو ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں دنیا میں, انکم تو آنی ہی آنی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی کام اٹھا لیں اس سے آپ کو آؤٹ کم آنا ہی آنا ہے. تو اس میں اگر ہم لوگ ایز اے سنسیئر ہو کے کام کریں, تو جیسے کہ میں ادھر جو ہمارے ٹیچر ہیں شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں, شاہ عمران صاحب آئے ہوئے ہیں, تو ان کی میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں جیسے یہ تربیت کر رہے ہیں. تو اس طرح کا کام بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے, تربیت بھی ہونی چاہیے. تو جو ہے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ایجوکیشن کو بزنس نہیں لینا چاہیے. اور ایسے ہوتا ہے جس ملک میں ایجوکیشن, تو جو 3 چیزیں ہیں کہ جہاں ایجوکیشن, صحت اور تعمیر اگر بزنس بن جائے تو وہ ملک ترقی نہیں کرتا, وہ تنزلیوں میں چلا جاتا ہے. تو ایجوکیشن ہی سب سے پہلا پوائنٹ ہے. اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں گے تو وہ جہاں بھی آئیں گے, جس بھی ادارے میں آئیں گے, تو وہ اس کا خیال رکھیں گے کہ ہم نے جو ہے کیا کرنا, اپنا مینڈیٹ پیش کرنا ہے اور چیزوں میں کیسے چلنا ہے. جب ایجوکیشن ہی ویک ہو جائے گی, بزنس ہو جائے گی, تو ہر معاشرہ, ہر سسٹم, ہر ادارہ فلاپ ہو جائے گا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے ساروں سے, ہمارے اسکول کے اداروں سے, کہ ایجوکیشن اداروں کو اسپیشلی جو بزنس نہ لیں, ان پہ فوکس کریں, بچوں پہ فوکس کریں, اور جو ہے کہ آپ لوگ اپنا مینڈیٹ پیش کریں, اس پہ کام کریں. تو اس طرح ہمارا آہستہ آہستہ معاشرہ ترقی کرے گا اور ملک ترقی کرے گا. اور یونس صاحب شروع سے ہی کمیٹڈ تھے. جب تک میں ان کے ساتھ جو 2-3 سال ان کے میرے ساتھ گزرے ہیں, تو یہ اس طرح کمیٹڈ انسان ہے. اور شروع سے کہتے تھے میری سلیکشن ہوگی تو اس کے بعد میں اپنا اسکول اوپن کروں گا. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایسے کوئی بزنس فیملی سے بلانگ نہیں کرتے, اور نہ ہی ان کا بزنس مائنڈ ہے. تو یہ ایسے بندے مینڈیٹ والے بندے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اپنے مینڈیٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو آپ لوگ ان کا ساتھ دیں. اور جو ہے کہ بس, اور میں کیا کہنا چاہوں گا, بس ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اللہ حافظ. 2 منٹ کے لیے تکلیف ہم بھائی سلمان خان کو دینا چاہیں گے. آپ تشریف لائیں. آپ بینکنگ کے بندے ہیں, مینیجر ہیں زرعی تجارتی بینک کے. آپ تشریف لائیں, آپ بھی کچھ سجیشنس, کچھ نصیحتیں کریں. آپ سے بھی ہم سیکھنا چاہیں گے. تشریف لائیے. بلے کی آواز ہے. سب تو پہلے تو میں کہ بہت اچھی بات دیکھی ہے کہ جڑے دوست بات دیتی ہے کہ سب دوستوں سے اسیں پروگرام بنایا کہ کم کاروبار فیکٹری بھی تو کھول سکتے ہیں, دکان کاروبار بھی کر سکتے ہیں. سونی گال ہے کہ ایک علم والے پاسے ہیں. اور جیسے پسماندہ علاقے جو ہیں جتنا علم دی بہت زیادہ تاثر, بہت زیادہ. سب تو پہلی گل یہ ہے کہ اساں
ایک حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین کیوں نہ جانا. پتہ نہیں مجھے چین کا ذکر ہے یا نہیں. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. بہت ساری حدیث ہم مسجد کے روزانہ سنتے ہیں, لیکن تعلیم والے پاسے جی سارے دیہاتی ماحول کے بچ جڑا ایک ذکر ہے بال نہیں پڑتا پیا ہے, زندگی برباد ہے. آدھنا عورت دی ایک بچی کو تعلیم دیواون پورے خاندان کو تعلیم دیواون برابر ہے. مرد ایک چلو کامیاب ٹھیک ہے, نوکری کر کے ہے, کاروبار کر کے. تو میں کو سب تو زیادہ یہ کوشش چاہیے کہ سارے گروپ جوار دے وچ وسینٹی دے وچ اچھا سکول بنائے. یہ بھی شکر ہے کہ یہ تعلیم دے معاملے چ کاروباری ہوئی ہے ہر بندہ خرچ کر رہے سی, میں اتنا کر گنا میں اتنا کر گنا. استاد صاحب نے بہتر جان دین اصل تارے بالا نکار ہے ایسا مدب ہیں یا نہیں. جو کچھ بھی ہے جتنا بھی ہیں جڑے بھی سٹیج تے ہیں استاد دے استاد ایک پیغمبرانہ کیمرے میں آ کے بتا پیغمبراں دا کام ہے تعلیم دینا علم دینا. یہ واسطے سب تو زیادہ خوشی تو یہ تھی ہے کہ نوجوانوں کا یہ پاسے رخ تھے, ورنہ جتنا سکول تے 9:30 بجے پہن کے بال کھیتے بنا اون علاقے دے وچ کہیں کو بھی کہیں حکمران دا گلہ کرنا مناسب. بذات خود پہلے تعلیم بعد زندگی دے, اور تعلیم دا تعلق کوئی بھی رزق نال نہیں. میں ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی, میں بینک نوجوان انجینئرنگ کریں آرمی لگے لگا انہاں چیزاں دا تعلیم دا تعلیم دا تعلق ہے شعور نال. اور آج مثال کرن کر پاؤں لگ رہا انہاں دے الفاظ انہاں دا ادب استاداں دا احترام. جے 5ویں تو بعد اگر 8ویں تو بعد لڑکا لگا گیا کاروبار ہی کو یہ شعور کوئی نہیں ہوتا کہ میں بڑے نال کیویں لاونا ہے, میں چھوٹے نال کیویں محبت رکھنی ہے. یہ چیزاں جڑیاں نا سب تو زیادہ سارا یہ بال ہے نکے نکے آپ سب کو بہترین کام ہے کہ نکے معصوم بال دا نفسیات کو سمجھے. استاد دا سب تو بڑا ایک قابل احترام ہون دا سب تو بڑا پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ نکے نکے بالاں دی اپنا نفسیات کو سمجھے. یہ بال دی نفسیات لڑاکو ہے, یہ کھلنا ہسنا ہے, یہ چپ چپاتا ہے. یہ سب تو عجیب جڑا ایک انہاں دا بہت بڑی ایک خوبی ہوندی ہے استاد دی, وہ یہ ہوندی ہے کہ وہ بال دے نفسیات کو سمجھ کے ان دے مطابق وہ چلے. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیاب کرے, اور این معاملے دے وچ اللہ تعالیٰ انہاں کو اتنی ترقیاں دے کہ یہ سکول تو یونیورسٹی تک اور یہ سونے کام وچ آویں بجائے اون دے دنیا داری دے وچ کمایا بالاں کو ڈتا مر گیا. جڑا علم ہو سی وہ ساری زندگی سی. بہت مہربانی. جزاک اللہ صاحب, بہت شکریہ, بہت پیاری باتیں کی آپ نے. اب میں دعوت اسٹیج دوں گا, زینت محفل کہہ رہے ہیں, پہلے پیر و مرشد کہہ لیں, استاد من کہہ لیں. میر تقی میر نے کہا تھا سر استاد و مرشد بندہ, میرے استاد و مرشد بھی ہیں, زینت محفل بھی ہیں, مہمان اعزاز اور مہمان خصوصی بھی ہیں. میں دعوت دیتا ہوں سر شاہ عمران علی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت باتوں سے ہمیں سیکھنے کا موقع دیں. سر سامنے کھڑے ہیں سر, کیا کہیں گے, تمیز نہیں ہے اس بچے کو. تھوڑا چلے آپ ان کی کوشش میں پکڑ لیتا ہوں. نہیں ایسا تو سر میرے لیے آزاد ہے سر, آپ بات کریں. میں تو آپ کو تکلیف نہیں سر, نہیں کوشش کر لیتا آپ ڈالیے. نہیں ادھر سے یہ وہ کریں جو آج کل سر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے سر, اب ہو گیا. جی سر ٹھیک ہے. دس از مینجمنٹ. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو میں اپنے عزیز کی طرف سے ونس اگین تمبی کروں گا, اور شکریہ میرے عزیز یونس صاحب کا, انہوں نے ایک
तालीमी इल्मी अदबी महफिल में शिरकत का मौका दे जहाँ मैं बहुत से दोस्तों से मेरे से बात मुलाकात हुई। इल्म अदब के हवाले से, तालीम और तदरीस के हवाले से जब भी कोई दायरा, कोई बात, कोई महफिल होती है तो मुझे यूँ लगता है जैसे अभी हमें ज़िंदगी बाकी है। यकीन कीजिए दुनिया में अभी नहीं, हमेशा से सिर्फ उन्हीं कौमों ने, उन्हीं अफराद ने, उन्हीं तबकों ने, उन्हीं कम्युनिटीज़ ने इज़्ज़त हासिल की है, तरक्की की है, हुकूमत की है, आज़ाद रहे हैं, जिनको इल्म फ़न से माफ़, जिन्होंने हुनर सीखा, इल्म सीखा। और जो दूसरी बात उनमें थी वो मेहनत करने वाले सच्चे लोग थे, मेहनत से, सच्चाई से मोहब्बत करते थे, उसूल से मोहब्बत करते थे। और जिन कौमों ने इन चीज़ों को छोड़ा वो अब भी आपके सामने जलील हो रही हैं और माजी में भी जलील और रुस्वा होती है। प्राइवेट स्कूल्स में इजाफा है। राबियन हमारे छोटे भाई ने, हमारे बेटे ने, अजीज़ ने ये इदारा बनाया, तो जाहिर है कमिटेड और सिंसियर लोग जब भी कोई काम करते हैं उससे यकीनन एक अच्छाई की बात है। लेकिन जो पॉजिटिव पहलू मैं देखता हूँ जब भी कोई नया स्कूल बनता है, जो पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखाई देती है, मैं, मेरे बहुत मोहतरम दोस्त बैठे हैं, अभी गुफ्तगू मेरे छोटे भाई हैं सलमान खान उनके, जहाँ साजिद साहब बात कर रहे थे, अजीज़ बहुत प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे बहुत मज़ा आया उनकी बातें सुन के। मैं उन्हें भी साथ ही शामिल करना चाहूँगा कि देखिए किसी भी फील्ड में तरक्की के लिए आपका विजदान, आपका जोश, आपका जुनून, आपका मुशाहिदा, आपका इदराक हमेशा अव्वली हैसियत रखता है। और ये विजदान, इंट्यूशन कब जागता है? आपके कमिटमेंट से, आपके शौक से, आपकी मोहब्बत से, आपके जुनून से। और जब आपको माहौल ही नहीं मिलेगा तो कब ये हो नहीं सकता कि मुझे जैसा आदमी जिसने कभी ज़राअत को हाथ नहीं लगाया मैं कोई नया आइडिया ज़राअत में लेके आ जाऊँ, नहीं हो सकता। मैंने कभी बिजनेस नहीं किया और मुझसे बिजनेस आइडिया के तौर को रख रही हूँ, नहीं हो सकता। यकीनन मैं आपको एजुकेशन नहीं को राय दे सकता हूँ, इल्म अदब की दुनिया में को राय दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा ओढ़ना भी सोना यही है। तो जब ये कंपटीशन होगा इदारों में, स्कूल्स में, तो ज़ाहिर है एजुकेशन का ही भला होना है। हमें एजुकेशन चाहिए तो कंपटीशन एजुकेशन में होना चाहिए। एक और सेक्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, चले कहने में हज नहीं, हमारा अपना सेक्टर है, वही पड़े पब्लिक सेक्टर, वहाँ उसे काम नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हमेशा ज़ाती चीज़ में होता है। अपना बिजनेस कर रहे हो, आप पूरी तवज्जो करेंगे, मेहनत करेंगे। आपके सामने नई दुकान खुली तो आपको और मेहनत करना पड़ेगी, फिर आपको न्यू आइडियाज़ लाना पड़ेंगे, आपको नए सिरे से काम करना होगा, आपको ज़्यादा काम करना होगा, आपको ज़्यादा मेच्योरिटी लाना होगा अपने काम में, ज़्यादा मोहब्बत से काम करना होगा। तो जब ये स्कूल्स बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाले कल हमारे बच्चों का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है। ये मत समझे कि ये कोई बिजनेस के लिए, बिजनेस तो सभी को करना होता है, जैसे खान साहब कह रहे थे, भाई ज़िंदगी में रहने के लिए आपने तो कुछ करना ही है ना। तो क्यों ना हमारे नौजवान जिसे ऑप्शंस नहीं है, जिसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो क्यों ना यहाँ भी एनर्जी पुट करे। तो ये नहीं होता कि सारे स्कूल, सारे पढ़ने वाले, सारे असासा, सारे के सारे किसी एक्टिविटी पे पहुँच जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी कंपटीशन में किसी ने हीरा बनना होता है, किसी ने गौहर बनना होता है। वो कंपटीशन होगा तो कोई बनेगा ना। तो ये कंपटीशन बनना है और इसे हम बड़े खुले दिल से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से और एहतराम से वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दो, इस तरह के और इदारे बने, गली मोहल्ले में हर बच्चा बना, मुकाबला करे, काम करे, आइडियाज लाए बच्चों की एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन मैं हमेशा कहा करता हूँ, एजुकेशन खान साहब एज यू वर सेइंग, एजुकेशन कभी भी बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू पढ़ाने का नाम नहीं होता। उनके अंदर मौजूद जो सलाहियतें कुदरत ने दी है, उन्हें डिस्कवर करना सिखाना है बच्चों को, उन्हें एक्सप्लोर करना है और फिर उन्हें सिखाना है कि इन सलाहियतों को इस्तेमाल कैसे करना है, उन्हें इंसाइट देना है, बसीरत देना है, उन्हें सिखाना है कि देखना कैसे, उन्हें सिखाना है कि बोलना कैसे। उन्हें अल्लाह ने समात दी है, उन समातों की तहजीब और तरबियत करनी है। बसारत दी है, इस बसारत की तहजीब और तरबियत करनी है। लुत्फ दिया है, इस लुत्फ की तहजीब और तरबियत करनी है। अक्ल दी है, उस अक्ल की तहजीब और तरबियत करनी है। सिखाना है सोचना कैसे, सिखाना है बोलना कैसे।
वो बेटा है तो उसे अच्छा बेटा बनाना, वो बहन है तो उसे अच्छी बहन बनाना, वो बेटी है तो उसे अच्छी बेटी बनाना, वो बाप है तो उसे अच्छा बाप बनाना, वो भाई है तो उसे अच्छा भाई बनाना, अच्छा इंसान बनाना हदफ है एजुकेशन का। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म करती है। हमने कंफ्यूज कर दिया एजुकेशन और लिटरेसी को। लिटरेसी इज पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये लिटरेसी है, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर। एंड व्हाट इज कैरेक्टर देन? एजुकेशन आपके किरदार की तरबियत है। तो फिर किरदार क्या है? आप बाप हैं, बाप का अलग किरदार है। आप बेटे हैं, बेटे का अलग किरदार है। आप टीचर हैं, आपको पहले एक्सप्लोर करने मेरा किरदार है क्या। आप इंसान हैं, आप एक मुस्लिम हैं, आप एक हमसाए हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक टीचर हैं। व्हाटएवर यू आर, यू हैव अ कैरेक्टर, एक्सप्लोर इट एंड वर्क इट अकॉर्डिंगली। लेकिन हमने तो डिफाइन नहीं किया कभी। इस कदर नाजुक, इस कदर फाइन चीज़ों को डिफाइन करना इदारे का काम होता है। हमारे नबी ने जब खुदा कह रहे हैं कुल इन्नमा, तो इस्तेमाल ये मेरे अभी तुम्हें उस्ताद बना के भेजा, मुअल्लिम बना के भेजा गया, और आपने पढ़ाया कैसे? अरब के वो बद्दू जो बात बात पे लड़ते थे, उन्हें ऐसा भाई बनाया, ऐसा भाई बनाया कि वो एक दूसरे पे जान देते थे। वही लोग जो एक छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, और सदियों पे जंगें चली जाती थी। वो लोग एक दूसरे पे मरने के लिए तैयार थे, एक दूसरे के सुख के लिए जान देने को तैयार हो जाते थे। अब हम ड्रामे करते हैं मजहबी होने के, हम हैं नहीं, लेकिन हमें होना है। ये इदारे करेंगे, हम दाढ़ियाँ भी रखते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, मस्जिद और इमाम बारगाहों में भी जाते हैं, मगर हम वो है नहीं जिसका हम दावा करते हैं। अगर हम वो होते तो हम जलील ना हो रहे होते। इतना सा इसराइल हमें जलील ना कर रहा होता। ईमान सिर्फ कहने का नाम नहीं, अमल का नाम है, और वो अमल तरबियत से होता है, तालीम से नहीं होता। तरबियत किरदार से होती है, और मुअल्लिम को वो पहले बनना होता है, फिर कहना होता है जो मेरे नबी ने किया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो हमें स्कूलों में बच्चों की तरबियत करनी है। We have to build their character. We have to transform them. इंसान के अंदर जो नफ्स का घोड़ा है, उसे लगाम डालना सिखाना, ये तरबियत है। उसकी तहजीब करनी है, उसकी तरबियत करनी है, ये स्कूल का काम है। मत ये तवक्को रखें कि मेरा स्कूल में बच्चा गया है तो वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, बहुत अच्छी उर्दू बोलेगा, बड़ा मैथमेटिशियन बन गया, उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो गई। सबसे पहले तुमको ये रखो कि मेरा बेटा जैसा गया था, क्या वापस आके वैसे ही उठता बैठता है, कोई चेंज आई है? माँ बाप से बात वैसे ही करता है, कोई चेंज आई है? अपने बड़ों से बात वैसे ही करता है कि चेंज आई है? वो वैसे ही लोगों से चीज़ें शेयर करता है, या बेटर हुआ है, कुछ शेयर करता है, हेल्प करना सीखा है, मोहब्बत करना सीखा है, कुछ काम हुआ है, कुछ बदला है, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो समझे एजुकेशन हो रही है। वरना आपके बेटे के वक्त का ज़िया हो रहा है, उसे बुलाइए किसी वर्कशॉप में, वहाँ वो दुनिया को समझ लेगा, वो पढ़ नहीं रहा है। बहुत से आपने देखे हैं पढ़े लिखे जो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो ये मेरा बच्चा है यूनस, अल्लाह सलामत रखे, हमारा अजीज है। ये बच्चे वो बच्चे जो रहना चाहिए इस फील्ड में, जिनके अंदर इल्म से मोहब्बत भी है, अच्छाई से मोहब्बत भी है, अदब और एहतराम भी है, तो यकीनन ये चीज़ें पेंग होती हैं। जैसे बच्चे माशाल्लाह बहुत से टीचर्स बैठे हैं मेरे सामने, हमें बाकी बच्चे बैठे हैं, जब अच्छा इंसान बनेगा वो अच्छा लीडर भी बनेगा, अच्छा साइंटिस्ट भी बनेगा, अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, अच्छा इंजीनियर भी बनेगा, अच्छा भाई शहरी बनेगा, और हम एक अच्छी कौम बन सकेंगे, जो हम अभी तक नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरे अंदर कोई बीमारी है, मुझे मान लेना चाहिए, तभी इलाज होगा, वरना हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। और मैं एक बार फिर गुफ्तगू खत्म करने से पहले कहना चाहूँगा, सजा खान साहब बैठे मेरे प्यारे दोस्त, देखिए सच ये है कि इस वक्त हम तारीख के अजीज दोहराए पे खड़े हैं। सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान हो जाते हैं। ये नाजुक तो बड़ा अजीब सा लफ्ज़ हो गया, बहुत तकलीफ दे, शर्मनाक तकलीफ होती है। ऐसे है कि नहीं? हमारे अंदर से एहसास तब खत्म हो गया कि हमें तरबियत नहीं ना, हमें हमारे निज़ाम तालीम में भी, सियासी निज़ाम में भी, और हमारे तमाम इदारों में भी सेल्फिश बना दिया, जैसे जानवर होते हैं। फिर वो जानवर जैसा, जानवर को आपने देखा भूखे खड़े होते हैं ना, बहुत से मुर्गियाँ, कुत्ते का लोग, या कोई हलाल जानवर, तो जब खाने की चीज़ आप देखते हैं ना, वो सारे उसमें भाई बहने बाप माँ सब भाग के दौड़ते हैं खाने के लिए। यहाँ आपकी माँ क्या करती है, आपके लिए अच्छा बचा रखती है, आप क्या सुबह खा लेती है। ये जानवर और हैवान में फर्क होता है, ऐसे है कि नहीं?
अब हम बिल्कुल वही बन चुके हैं, हम नहीं देखते कि साथ वाला मर रहा है कि जी रहा है, हम उन जानवरों की तरह दौड़ते हैं कि मेरी जेब भर जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरा घर भर जाए, बाकी जाए भाड़ में। हम बिल्कुल हैवान बन चुके हैं दो टांगों में, इंसानियत नहीं रही। उसकी एग्जाम्पल आप देख लें, आपको मतलब ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है मसलक पे कि अल्लाह ने कहा, कुरान की आयत है बल्कि मुसलमान भाई बहन, और फिर हदीस में वजाहत की गई कि सिर्फ भाई ऐसे नहीं कि तुम एक कल जैसा दिन भाई, एक जिस्म की मानते हो, और जिस्म के एक हिस्से में एकदम तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन होता है, आँख में दर्द है, कान में दर्द है, तो बाकी जिस्म चैन से नहीं सोता, ऐसे है ना। तो पूरी दुनिया का मुसलमान एक बदन की, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ एक बार इससे आपसे माजरत चाहूँगा गुफ्तगू खत्म करते हुए। बदन का एक हिस्सा है, उसमें तकलीफ है तो पूरा बदन बेचैन होता है, और नबी ये कह रहे हैं कि आप मुसलमान, सारी की सारी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म की मानते हैं, ये पूरा जिस्म है, पूरी दुनिया मुसलमान सारे पूरा एक जिस्म है। तो क्या फलस्तीन और कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है? फलस्तीन के बच्चे, मैं पिछले दिन देख रहा था, बच्ची रो रही थी, हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हम रेत पे सोते हैं और हमारे बदन घुटते हैं, हमारे पास खाने पीने को नहीं, हम घास खाते हैं। एक बाप ने 2 बच्चों की लाशें उठाई, उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है उसके पास, जिनके घरों पे छतें नहीं, शदीद ठंड के अंदर गलियों में, सड़कों पे, नालियों के किनारे वो बच्चे सोए हुए। अगर वो आपके जिस्म का हिस्सा है तो ये तकलीफ आपको महसूस करनी चाहिए। मुझे बताएं, मेरे समेत किसी एक दोस्त ने कोई एक रात ऐसी गुजारी कि आपको नींद ना आई उनके दुख में, एक खाना हमने छोड़ दिया उसके दुख में, तो फिर ये वो मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान नहीं। मेरे दोस्त, हम सेल्फिश हो चुके हैं, मुसलमानों की तरफ खुदगर्ज हो चुके हैं। हमें एजुकेशन के एक और लेवल की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है, जो नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं नौजवानों से तो रखता हूँ, जो नए नौजवान इस फील्ड में आ रहे हैं, जो अपने दोस्तों को पहले इंसान बनना सीखें, अच्छा इंसान बनना। नए बच्चे जो आ रहे हैं इस एजुकेशन में, नौजवान जो आ रहे हैं, स्टेट आपको नहीं देंगे, आपने करना, खुद आपने करना। वो एक शेर, मंसूर भाई किधर है? शेर मंसूर भाई आप हैं, इस शेर के साथ तो इन बच्चों से उम्मीद सी है, और उस उम्मीद के वाले से एक शेर कि बैठा है शाख दिल पे परिंदा अजीब सा, बैठा है शाख दिल पे परिंदा अजीब सा, नीला है सब के सब मगर एक पर सफेद। बस वो एक सफेद पर है जो आपसे वाबस्ता है, वो उम्मीद है, रोशनी की किरण है, वो ये नौजवान है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, याद रखिएगा, कौम बनाइएगा, मत सोचिएगा कि मैंने कोई पोजीशन लेनी है, मेरे बच्चों ने मैंने बोर्ड लगाना है। आपने एक बच्चे को भी बच्चा बना लिया ना, वैसा जैसे पाकिस्तान को चाहिए, जैसा मौला को चाहिए, जैसा इंसानियत को चाहिए, समझे आपकी ज़िंदगी का इस ज़मीन पे आने का मकसद है। सलामत रहे, थैंक यू। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत नसीहत। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपने जो नसीहतें की हैं उन पर अमल करूँ और तरबियत कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अपने असातिज़ा के तनख्वाह के पा जो है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है, मेरी औकात से बढ़कर मुझे अता किया गया है। मैं आप सब दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह जो महरूमियाँ, जो मसाइल, जो तगोदो मुझे करना पड़ी और जो मसाइल और महरूमियाँ देखना पड़ेंगी, मैं कोशिश करूँगा मेरे बच्चे वो महरूमियाँ और वो मसाइल ना देखें। इसके लिए मुझे आपका ताउन और आपके लहजा ब लहजा सर मंसूब साहब, सर गुलाम हसन महार साहब, सर शाहमान अली, सिराज भाई और बाकी सारे असातिज़ा और दोस्त, लहजा ब लहजा, लम्हा ब लम्हा आप लोगों की गाइडलाइन, आपकी रहनुमाई, आपकी शफ़क़त चाहिए होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना दस्त शफ़क़त यूँ ही मेरे सर पे रखेंगे। और मेरी खुशकिस्मती है अल्हम्दुलिल्लाह के नर्सरी से लेकर एमए तक और एमफिल तक के असातिज़ा मुझसे राज़ी हैं, मेरे वालिदैन मुझसे राज़ी हैं, और मैं समझता हूँ मैं कामयाब हुआ हूँ तो अपने असातिज़ा और वालिदैन की दुआओं से हुआ हूँ, दोस्तों की दुआओं से हुआ हूँ। अब भी दिल से मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत अता फरमाए, लालच से बचाए। मेरा मुद्दा, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, ये नहीं कि पैसा कमाना है,
बिल्कुल भी नहीं। मेरा मुद्दा एक ही है, जो कुछ मैं नहीं कर सका वो मेरे वसेब के, मेरे शहर के, मेरे इलाके के, मेरे बच्चे के। ऐसी बहुत सारी महरूमियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, यकीन करें आप, वो हज़ारों ख्वाहिशें मेरे चेहरे पे चिपकी रह गई। मैं जवां उम्री में ही सदियों पुराना हो गया। ये सदियों पुरानी जो ख्वाहिशात हैं, जो मेरे अंदर एक हलचल मचाए हुए तूफान है, मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं कर सका मेरे बच्चे करें। तो इंशाअल्लाह मैं यहीं पे हूँ, आप लोग देखेंगे, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। खुदा के करम के बाद आपकी गाइडलाइन, आपकी शफकत मुझे चाहिए होगी। आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, आपकी गाइडलाइन, खुदा के करम, खुदा के रसूल के करम के साथ मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो यहाँ से निकल के जाएगा आपको नज़र आएगा कि उसने कुछ हासिल किया है। मेरा मुद्दा एक ही है, सर ने भी कहा है कि इंसान बनाइएगा। इंशाअल्लाह यहाँ पे फितरत नूए बशर तब्दील की जाएगी। आपको नज़र आएगा कि कुछ यूनिक है। मैंने, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सैयद मोहसिन रज़ा शाह साहब, आप जानते भी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, तो मैं उनसे मिलता रहता हूँ, उनसे गुफ्तगू होती है, फैज़ हासिल करता रहता हूँ। हर वक्त जब मेरी पहली बार लेक्चरशिप नहीं हुई, मैं कुछ पॉइंट्स कहने उनसे रह गया, तो सबसे पहली थपकी उन्हीं की तरफ से कि नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, काम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये एक नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इंशाअल्लाह अगली सीट हमारी है। यकीन करिए, असातिज़ा का मैं किरदार बता रहा हूँ। सीटें आई तो सबसे पहले कॉल आई, मैंने सुबह अखबार देखा, सीटें आई हैं, अप्लाई कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फिर रोज़ की बुनियाद पर क्या पढ़ा, क्या कुछ पढ़ा, ये जहन में रखें वो मेरे सब्जेक्ट के उस्ताद नहीं हैं, वो इकनॉमिक्स के उस्ताद हैं। मैंने एक भी दिन उनसे नहीं पढ़ा, एक भी क्लास नहीं दी, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी पुरकशिश है कि इंसान को खींच लेती है। तो वो मुझे यही कुछ कहते रहे। आज भी मैंने बात की कि सर मैं मुंतज़िर रहूँगा, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। कुछ मजबूरियाँ थी, वो उस वजह से नहीं आ सके, तो कह रहे थे कि वही दुआएं जो मैं उस वक्त करता था, वही दुआएं अब भी तुम्हारे लिए है। उस वक्त भी तुम कामयाब ठहरे थे, अब भी कामयाब ठहरोगे। आपसे भी दुआओं का इल्तमास करता हूँ, आप सबसे। तो आप मेरे साथ ताउन कीजिए, रहनुमाई कीजिए। इंशाअल्लाह मैं नस्ल नौ को तब्दील करने का आज़म लेकर उतरा हूँ और इंशाअल्लाह ये कार्य करूँगा, इससे पीछे नहीं हटूँगा। और मेरा मुद्दा और मसला नज़र कतन पेमेंट और पैसे नहीं रहेंगे। मैं अब भी, मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, असातिज़ा भी जानते हैं, हाफिज़ साहब से भी मैंने यही कहा है, तो मेरे भाई हैं हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान, मैंने उनसे यही कहा है कि जब इस लाइन में आ रहे हैं तो फिर आप जो है ना मेरे साथ ताउन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ताउन किया है, कभी पूछा नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो एतमाद हासिल करना ये भी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे असातिज़ा का, वालिदैन का, दोस्तों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का एतमाद हासिल है। इंशाअल्लाह मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर बला और मुसीबत से महफूज रखे और इस मिशन में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर। स्पेशली शुक्रिया आपका फिर अदा करूँगा कि मैंने पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पे, दोस्तों ने मुबारकबाद दी, मंसूर साहब ने भी